کسی عمل کے لیے دکھاوے کے لیے کوئی عمل مطلب آپ دے رہے ہیں اللہ کے لیے لیکن ایک دل کے اندر ایک چیز آ گئی ریاکاری دکھاوا کی مطلب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا سا آپ کا کفیل آ گیا تو ذرا سنوار کر کے پڑھنے لگے تو یہ ریاکاری داخل ہوگی. نماز تو آپ نے اسٹارٹ کی تھی اللہ کے لیے لیکن اب وہاں تھوڑی سی ریاکاری تو اس کی وجہ سے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. شرک اکبر یا شرک جلی اور شرک اصغر یا شرک خفی ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے عموماً لوگ نہیں جانتے یہ بات یاد رکھیں. فرق یہ ہے کہ شرک اکبر سے پورے کا پورا ایمان برباد ہو جاتا ہے پورا عمل ضائع اور برباد ہو جتنے بھی اعمال ایمان وغیرہ سب خراب ہو جائے ٹھیک ہے. اور شرک اصغر سے صرف وہی عمل برباد ہوتا ہے جس کے اندر وہ عمل وہ شرک پایا جاتا ہے بقیہ وہ مخرج من الملہ یعنی وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. لیکن شرک اکبر یا شرک جلی سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو اچھا اشراق دوحا اور چاشت میں کیا فرق نماز میں اور کبھی سب ایک ہی نام ہے اشراق دوحا چاشت. چاشت فارسی میں ہے اشراق شروع سے ہے دوحا بھی وہی. کئی لوگ بولتے صبح اشراق پڑھنے چاہیے 10 بجے دن نکلنے کے بعد دن نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو اشراق بھی کہتے ہیں اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے. اچھا عیدین کی نماز میں عیدگاہ میں سنت نہیں پہلے پڑھنا ہے اگر مسجد میں عید پڑھے تو نماز پڑھے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے کیا؟ ہاں مسجد میں اگر آپ آئیں گے تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے پڑھ لیں عید کے دن عید کے دن اس لیے کہ دیکھیں مسجد میں کوئی عیدین کے دن کوئی نماز جیسے عصر کے ٹائم عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ سبب آپ کا آنا ایک سبب ہے. اس سبب کی وجہ سے مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اسے 2 رکعت پڑھ کے دیں. یہ مسجد کا یہ حق ویسے حرام ہے کوئی بھی نماز لیکن جب آپ مسجد میں آئیں گے تو یہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی نماز آپ کے اوپر لازم آ رہی ہے تو وہ پڑھنا ہے. جیسے آپ طواف کر رہے ہیں عصر کے بعد طواف کرتے کرتے 4-7 چکر آپ نے پورے کر لیے تو اب عصر کی نماز تو ہو گئی. عصر کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ بھی چکے لیکن چونکہ طواف آپ نے کرا ہے عصر کے بعد تو اب وہ طواف کرنے کی وجہ سے 2 رکعت طواف کی جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. وہ کسی سبب کی وجہ سے وہ نماز آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہے اس لیے آپ اسے پڑھنے کی اجازت ہے جو کسی سبب سے ہو. ویسے عمومی طور پر نماز مسجد کے اندر عصر کے عمومی طور پر جیسے عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. زوال کے وقت پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت عید کے دن بھی کوئی نماز نہیں ہے لیکن چونکہ آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو یہ سبب ہے. زوال کے وقت نہیں تو حرام ہے زوال کے وقت 3 اوقات میں جس میں نماز پڑھنا حرام ہے. دن ڈوبنے کے وقت اور ایک دن نکلتے وقت اور ایک زوال. نہیں تحیۃ المسجد زوال کے وقت پڑھی جا سکتے اگر مسجد میں چلے جائیں تو. دیکھیں مسجد میں اگر آپ گئے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ جب بھی جائیں گے 2 رکعت اگر بیٹھنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے لیکن آپ دیکھ بھی لینا کہ سوال کے وقت کیا ضروری پڑی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں یہ بھی دیکھ لیں تھوڑا خیال ہے. ہاں پہلے چلا جائے تو پہلے جائے گا سوال سے پہلے تو پہلے پڑھ لے گا تو الحمدللہ سوال تو بعد میں آ جائے گا. جی جی شیخ صاحب میرا نام محمد خورشید خان ہے. میرا سوال جادو کے اوپر ہے. یہ جو جادو ہوتا ہے سر اس کو کس طریقے سے اس کو ختم کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح سے کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اس موضوع پر میرا خیال ہے شیخ عبدالرحمٰن جادو کی پورا سیٹ ہی موجود ہوگا لیکن بہرحال باختصار میں آپ کو کیونکہ بڑا لمبا موضوع لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جادو ہوتا ہے عموماً لوگوں کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص افراد ہوتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں پڑھ کر کے وہ پھونکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جادو اس میں کوئی شک نہیں. جو ایک ہوتا ہے جادوگر وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ایسے کام سے جس سے کہ شیطان راضی اور خوش ہو وہ کام کرتا ہے تو شیطان اس کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر جادوگر کسی بھی کوئی بھی چاہے وہ جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو جیسا کہ ہمارے یہاں ولی اللہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب میں غیب کی باتیں جانتا ہوں یا تمہاری بھینس کدھر گئی ہے میں جانتا ہوں تمہارا بیل کدھر گیا تمہاری بکری
یا فلاں فلاں، یہ تمام سب دعوے کرتا ہے، یا لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہانت کرنے کے لیے، اور وہ مطلب یہ کرتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ جادوگر ہے. اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ اولاً وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر کی سزا توبہ بھی نہیں. یعنی اگر وہ پکڑا گیا تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق، مطلب اسلامی قانون میں اسلامی شریعت جہاں چل رہی ہے، بادشاہ وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. لا یستتاب، یعنی وہ پکڑا گیا اور لگا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، لیکن نہیں، اسے قتل کیا جائے، اسے معاف نہیں کیا جائے، اس کی سزا قتل. یہ حکومت وقت کرے گی. ہر آدمی نہ تلوار اٹھا کے بندوق لے کسی کو مار دے، یہ غلط بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ حکومت وقت کرے گی، نمبر 1. نمبر 2، یہ اتنا بڑا مجرم ہے یہ جادوگر، یہ زانی بھی ہوتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی سب کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ شیطان ان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ حیرت زدہ رہیں گے کہ قرآن کریم کو اپنے پیروں میں بندھوا کر ٹوائلٹ کے اندر بھی لے جاتا ہے یہ خبیث. تب جا کر کے شیطان اس کو اپنی سپورٹ دیتا ہے، اپنی خدمات دیتا ہے کہ میں اب تم کیا چاہتے ہو وہ کریں گے. تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے شیطان کا اور دونوں کا جو میل جمل ہوتا ہے، تاج محل یہ چھوڑی اور دامن کا کی طرح ہوتا ہے. اب اگر کسی کو کچھ کروانا ہوتا ہے غلط کام تو اس کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ کروا دو، یہ کروا دو، اس کی ٹانگ کروا دو، اس کا فنا کروا دو یا کچھ بھی. تو وہ پھر اس کے لیے کچھ طلب کرتا ہے، تم یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، مطلب مرغا لاؤ لال کلر کا ہو یا کالا کلر کا ہو، یا تمہاری ماں کا نام کیا ہے. یہ جادوگروں کی پہچانوں میں سے ایک سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا نام ضرور پوچھتے ہیں. ماں کا نام کیا ہے؟ جس آدمی کے لیے تمہیں کچھ کروانا ہے اس کے جسم سے، اس کا بال ہو یا اس کی کنگھی ہو یا اس کی ٹوپی ہو یا اس کا کرچیف ہو یا بنیان کا، یا جو جسم سے لگے ہوئے کپڑے، وہ چیز لے کے آؤ، وہ چیز دے دو. تو وہ کرتا ہے، پھر وہ اس میں جادو کیا کرتا ہے. جادو وہ کچھ پڑھتا ہوتا نہیں ہے، بس وہ کچھ ایسے کام شیطان کے لیے کرتا ہے کہ وہ مرغا جو ہے یا بکرا جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے، اس کے لیے دوا، اس کو خوش کرنے کے لیے دوا کرتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے مرض سن لیں، پھر علاج تو آسان ہے. علاج تو بہت آسان ہے، تو میں 2 لفظوں میں بتا دوں. پہلے مرض کا جب تک آپ حقیقت نہیں سمجھو گے نا، جب تک آپ علاج نہیں، ایک ہی ڈانٹ میں تو آپ چھوڑ کے مریض کو بھاگ جاؤ. جب جن آئے گا جہاں اس نے آگ نکالی تو وہیں پسینے چھوٹ جائیں گے. لیکن جب آپ حقیقت جانے رہو گے تو آپ کو کچھ ڈر نہیں لگے گا، آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ جادوگر پھر وہ اس نام کے ساتھ اس کے پاس جن آتا ہے اور اس کو اس سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تم کو جا کے اس کو تنگ کرنا ہے یا اس کو مارنا ہے یا جو بھی، وہ جو بھی حکم دیتا ہے پھر وہ اسی انداز سے کرتا ہے. اب یہ ہوتا ہے مسلسل، کہیں کسی کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، کسی کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، ادھر کے سر میں درد ہو رہا ہے، کسی کے پیٹ مطلب کسی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بچے بھی کئی قسم کے جادو ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں. البتہ اس وقت جو ہے جادو، اس کا علاج مختصر یہ ہے کہ اس کا علاج ہر جادو کا جو اس کے انواع اور اقسام ہیں ان کے الگ الگ علاج بھی ہیں، الگ الگ طریقے سے. لیکن مجموعی طور پر اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو مجرب ہیں، جو تجربہ کیے ہیں پڑھنے والوں نے. ایسا نہیں کہ پورا قرآن کریم ہی الحمدللہ آپ سورہ فاتحہ پڑھو یا قل اعوذ پڑھو تو انشاءاللہ تعالیٰ کے بعد. لیکن کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے کا حکم دیے پڑھیں آپ تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جادو شیطان ہے تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے، پھر آپ سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا، جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یا جانا ہے تو کہتا ہے ہم باہر میں نکلوں گا تو مجھے مار ڈالیں گے. تو پھر اس وقت علاج کرنے والے کو بھی باقاعدے اس کا بھی ایک اس کی ٹریننگ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کو معلومات ہو کہ ہم کو کیا کیسے کرنا، کیا کیا اسٹیپ لینے ہیں اس کے بعد. تو انشاءاللہ قرآن کریم ہی سے اس کا علاج ہوگا اور کلی طور پر ہوگا، اور قرآن ہی کے اندر باقی دوسرے جادوگروں کے ساتھ جاؤ گے تو وہی ہوگا کہ ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ میں لگوا دے گا اور وہ اس کو انڈر ورلڈ والا مارے گا، وہ اس کو مارے گا، اس کو مارے گا. تو یہ جنوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جیسے ڈاکوؤں اور چوروں کا ہوتا ہے. سمجھ آپ؟ کیا شیخ سدیس صاحب مقلد ہے یا غیر مقلد ہے؟ یہ سوال آپ شیخ سدیس جی کیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے تو آئے میں میرا سوال ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ تو اس کی حقیقت دیکھا. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، شیخ سدیس پاکستان گئے تھے اور وہاں لکھیے شیخ سدیس ان پاکستان
मेरे पास है वो। उनकी तकरीर है, मेरे पास उन्होंने क्या कहा है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, रात को मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वालों को फोन तो किया वही सुना दीजिए ना कि वो खुद को क्या कह रहे हैं, वो खुद को कह रहे हैं बाबा वाह जी। नहीं, मेरे पास तो क्लिप है, मैंने उसको बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस में जो नमाज वितर का जो तरीका मनकूल है वो आप बुलुगुल मराम उठाइए, उसके अंदर देखिए, या हदीस की जो छोटी मोटी बड़ी किताब है, दो तरीके हैं। एक तो ये कि या तो आप 3 रकात पढ़ें, तो 3 रकात का तरीका ये था कि 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दें, फिर 1 रकात पढ़ लें, इस तरह से 3 हो गए। या तो आप 1 रकात पढ़ लें, तो उसका भी वही तरीका है जैसे 1 रकात पढ़ने का। बीच में जो आप कह रहे हैं कि मतलब 2 रकात पढ़ के बीच में तशहुद पढ़ के फिर खड़े हों, ये अल्लाह के नबी साहब से साबित नहीं है। और फिर बीच में वो सूरह फातिहा और कुल पढ़ के फिर अल्लाह अकबर के नियत माने, ये अल्लाह के नबी साहब से साबित नहीं है। तो इमाम शाफी ने चैलेंज किया होगा, कोई दलील नहीं। हाँ, कंटिन्यू एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका यह है कि बगैर फसल किए हुए कंटिन्यू आप 3, 5, 7 भी पढ़, है ना, बगैर तशहुद। हाँ, वही बात हुई मस्जिद में जब भाई ने सवाल किया है कि मैं सुन्नत घर में पढ़ता हूँ फजर की, फिर जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो अभी टाइम रहता है तो मैं बैठूँ, बैठने से पहले आप 2 रकात पढ़ें, भले आपने सुन्नत घर में पढ़ी, ठीक है। ठीक, तल्ज़िमु जमातुल मुस्लिमीन व इमामों, हाँ, तल्ज़िमु जमातुल मुस्लिमीन व इमामों, तंजीमुल जमातुल मुस्लिमीन, ये कौन सी कराची के साहिब में बनी हुई तंजीम है, और वो ये गुमराह फिरके लोग हैं, ये गुमराह लोग। बहुत सारे दलाइल यही पेश करते जी, इसके दलाइल पेश करें और कुछ हदीसें भी अबू दाऊद वगैरह की भेज रहे वो सारे दलाइल इनके खिलाफ, क्योंकि तंजीमुल मुस्लिमीन नाम की कोई का लफ्ज़ ही नहीं हदीस, वो कह रहे नहीं जमात, अल जमात का लफ्ज़ हदीस में है, तो जब तक जमात और इमाम के ऊपर अगर हम तो आप ही क्यों इमाम है हजरत, हमारे आप ही मिले, बहुत सारे इमाम हैं। जनाजे के अंदर रफ़्ल ज़ैन की कोई रिवायत मिलती नहीं, ये किताबुल इल्म के अंदर जो रिवायत लेके आए हैं सहाबी से है, जो सहाबी से है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस है उस सिलसिले में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको साबित नहीं है। इसलिए चूंकि सहाबी का असर अगर हदीस नहीं है तो सहाबी का असर जो है काबिल अमल है मनहज सलफ, इसलिए उसको किया जाए। किया जाए। अल्लाह ताला शरीयत से ज़्यादा करीब है, इसको कैसे समझेंगे? ये कुर्ब इल्मी है, न कि कुर्ब ज़ाती है। कुर्ब इल्मी का मतलब यानी आपका अल्लाह का इल्म आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि, और नहनु का लफ्ज़ है, नहनु में फरिश्ते और मलाइका भी, यहाँ से मुफस्सिरीन ने जो बयान किया वो फरिश्ते और मलाइका है कि हमारे फरिश्ते तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। और अल्लाह की मईयत जो है ये इल्मी है, अल्लाह की ज़ात रहमान व अर्श इस्तवा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह अर्श पर, बस इतना है, वो कैसे है क्या है उस सिलसिले में हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब भी ये सवाल होगा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो उसका जवाब सलफ का यही है कि अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, और या अन्नहु फिस समा, या वो आसमानों में है या आसमानों के ऊपर है, ठीक है। इसको दलील बना रहे थे मौलाना यूट्यूब पर कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, जानते हैं तो ठीक है, अगर होकर वो दलील बनाते हैं तो वो दलील ये साबित करें कि सलफ में किसने कहा, सलफ में किसी ने कहा, ये अकीदे तो मुब्तदिआ के हैं, सूफियों से आए हुए बिदती हैं कि अल्लाह हर जगह है, उनके अंदर दाखिल है, वो उसके कोई कहता है दिल के अंदर है, कोई कहता है हमारे साथ, ये सूफिया और मुब्तदिआ के बिदतियों के अपने वो हैं। लेकिन सलफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, और जो इसको ना माने वो काफिर है, ठीक है। किताब का हवाला दें। किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब जो किताब है उसी के अंदर वो शरह के अंदर उसी तफसीलात शेख मीरा गोल्ड के बारे में और बता एक जी मीरा गोल्ड के बारे में और बता उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें मीरा गोल्ड क्या है हीरा गोल्ड आपके दुबई में है, नहीं वो प्रॉफिट जैसा वो कर रही है ना
प्रॉफिट को है तो सूद की तरह जायज है नहीं जायज? हाँ नहीं, उनका कारोबार ये है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000 से स्टार्ट लेते हैं या 50,000 से स्टार्ट है गालिबन जाने, और फिर उसके ऊपर जितना भी दें, उसमें जब वो बिजनेस करते हैं ग्रुप करता है, तो वो जो मुनाफा अच्छा उसके अंदर कई कैटेगरियाँ हैं, वो ये मिनरल पानी का मुयस्सर जो ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और ड्राई फ्रूट्स, खासतौर से अब ये मसाले भी, अब जैसे मेहरान का आता था, अभी कल रात को मैंने देखा, वो पूरे माशाल्लाह, मैंने कहा वाह क्या वैराइटीज है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की भी शुरुआत होने वाली है, बल्कि उन्होंने लॉन्च भी कर दिया, चावल और मसाले, दाल, ये वो सब। तो ये इसके अंदर आप फिर कपड़े और फिर रियल एस्टेट भी, इसमें आप किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं वो भी आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो फायदा मिलता है, जो फायदा मिलेगा उसमें 60% कंपनी की चार्ज कर रहा है, ये आपका मुआवजा ये फिक्स कर रही है ना। हाँ, तो क्या हुआ, वो 40% में कभी 4,000 आएगा, कभी 3,000 आएगा, कभी 3,500 आएगा। अच्छा, ये फिक्स नहीं कर रही? नहीं, ये फिक्स नहीं है कि आपको 4,000 ही मिलेगा, इनकम पर वो जो परसेंटेज पे है, परसेंटेज पे फायदे में परसेंटेज जो फायदा है उसमें, जैसे 100 रियाल का फायदा होगा 100 दिरहम का, तो 40 रियाल आपको मिलेंगे, 60 रियाल कंपनी मिलेगी, 40%। तो ये हलाल है, और ये वाकई सूद से बहुत बड़ा जाल है। कल औरतों से मैंने खिताब किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा भाई ये तो जहाद है, और शैतान तो इसमें बिलबिला ही रहा, जिसमें मुसलमानों को तो हम बैठ करके खाना चाहिए, कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हीरा ग्रुप नुकसान होता है तो नुकसान भी होगा, 2,500 भी आपको आ सकते हैं, 2,000 भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, फायदे ही उनका कांटेक्ट नंबर, हीरा गोल्ड का कांटेक्ट नंबर नेट पे मिल जाएगा। आप हीरा गोल्ड लिख के दुबई, बाजू में मरीन दुबई यही है, वहीं से तो मैं आया हूँ। हीरा गोल्ड रोड के ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर। आजकल लोग एक दूसरे को बहुत सारे फतवे दे रहे हैं कि फलाशम बिदअती है, फलाशम मुशरिक है। इस्लाम में ये फतवा कब दिया जाएगा? ऐसा कि हम उसको दावत ही नहीं दी बिदअत से इब्तिदा करने की, बिदअत से हटने की, और हम उसको शिर्क से दूर रहने की दावत ही नहीं दी, और हम कहते हैं कि वो शख्स बिदअती है, वो शख्स कह रहे हैं कि वो शख्स ये तो सवाल ये है कि कोई पर्टिकुलर शख्स फलां शख्स कब मुशरिक होगा, कब बिदअत होगा, इसकी हुज्जत क्या है इस्लाम? ये बगैर मुशरिक नहीं, देखिए बात बहुत सही है, किसी को काफिर बनाना, मुशरिक बनाना, बिदअती बनाना ये मामूली चीज नहीं है। आदमी अगर बिदअती की और काफिर की या मुशरिक की के बारे में इल्म रखता है कि ये कौन लोग हैं, तो वाकई इतनी जल्दी नहीं किसी को काफिर या बिदअती या मुशरिक जबकि हमने दावत समझ रहे, बल्कि ये है कि शरीयत में ये है कि ये आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो अकीदा रखे वो बिदअती, या इस तरह के अकायद रखने वाले काफिर, या इस तरह के ईमान रखने वाले मिसाल के तौर पर ये मुशरिक, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी को फर्द कामिल को कि अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान तू मुशरिक है, तू बिदअती, ये उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि इस्लाम में हुज्जत ना हो, उस तक दावत ना पहुंचे। किस तरह हुज्जत कायम करें वो बताएंगे। उसके लिए हुज्जत यह है कि जिस शख्स को आप वो अमल करते जब देखें, आप उसे पकड़ें, बैठें, प्यार से मोहब्बत से वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, गुफ्तगू करें, पहले मुआज़ा हसना से नसीहत अल्लाह से जलाएं, और उसको बताएं कि देखें ये अमल जो आपका है ये कुरान सुन्नत के खिलाफ है, ये सही नहीं है, बिदअत है ना, और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आदमी ऐसा बताएं। अगर वो छोड़ रहा है कि 99% तो नहीं छोड़, क्योंकि वो बिदअत है, वो बिदअत वो इसलिए कर, दीन समझ के कर रहा है, इसलिए उसे तौबा की तो फिर जल्दी नहीं होती है, शराबी, खानी, बदकार को, सूदखोर को हो जाती है, लेकिन उसको नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि शैतान उसके सर पे सवार है। फिर भी आपने कह दिया, हुज्जत कायम कर दी, अब वो कहते नहीं चाहिए, अब जैसे बड़े देखे हमारा यही दीन है, हमारा तो खलास, अब आपकी हुज्जत कायम हो, आप ये कह सकते हैं हुज्जती है, मुझे मुशरिक है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं। कितने बार हमको कहना चाहिए? बस वो हुज्जत के लिए वो नहीं कि आप उसके पीछे लगे रहें, खलास। जब अपने को पता अब वो शवाफे हैं, वो अपने आप को शाफी कहते हैं, तो उनके यहाँ है कि 3 दफा, जैसे 3 तमाम आज़ाए वज़ू को 3 दफा धुला जाए, ऐसे ही मसह को भी 3 दफा, और मसह उनके यहाँ चंद बाल भी छू लिया
तो भी काफी है। जैसे अहनाफ के यहाँ है रुबع सर, तो एक सर चौथाई सर का मसा कर दिया, ऐसे आपने कर लिया उनका भी मसा, तो उनके यहाँ वो है, इनके यहाँ 2-4 बार है, ये तो गलत है। सही क्या है? सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये है कि आपने शुरू से लेकर के यहाँ पे पीछे और पीछे से आगे तक है, ये है सुन्नत के मुताबिक। शेख इमाम अबू हनीफा का अकीदा कैसा था? जी, इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहिए। जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहलुस सुन्नह वल जमाअह के इमामों में से हैं। और जैसा कि बात चीज़ें उनकी तरफ मंसूब हैं, कुछ लोगों ने कहीं बातें कही हैं कि वो उनका इर्जा का भी अकीदा था, कुछ था। बहरहाल वो तमाम सब चीज़ें तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उम्मतें हैं गुजर गई, हम जितना जानते हैं हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। और इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह अइम्मा अरबा मज़बूर अइम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, इसलिए उनको बिदअती या इस टाइप का या हरगिज़ नहीं। ये और बात है, उनके ज़माने के कुछ लोगों ने उनके ऊपर जो कही है वो जाने, उनका अमल जाने, हम नहीं जानते, है कि नहीं। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, इमाम शाफी हमारे इमाम, इमाम मालिक हमारे इमाम, हम सारे हमारे इमाम, इमाम बुखारी मुस्लिम ये सारे हमारे इमाम। ये इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह, ये इमाम अहले बिदअह नहीं है। और आज बहुत सारे लोग उन्हें अपना इमाम कहते हैं, लेकिन सारे इमाम तो सारे बिदअती, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर अक्सर हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो टोटल वही बिदअती हैं। जो इमाम साहब का नाम लेते हैं ज़रूर है, लेकिन इमाम साहब के नक्शे कदम पर ना उनका ईमान और अकीदा है और ना ही उनका अमल। समझे जी। जमात इस्लामी, आप जमात इस्लामी इख्वानुल मुस्लिमीन, ये सियासी लोग हैं बेचारे, ये कौन सा इस्लामी पार्टी है? ये सियासी पार्टी है। जमात इस्लामी एक सियासी पार्टी है, सियासी विंग है ना। मौलाना मौदूदी साहब का जो नजरिया था उससे बहुत दूर निकल गई है, बहुत दूर निकल गई। तो मौलाना इंसान के अंदर गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हैं, लेकिन बहरहाल खुद मासफा का अमल कदर, अच्छी चीज़ें ले लो, गंदी चीज़ें छोड़ दो। हमें किसी पार्टी जमात नहीं बनाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं। और फिर मुसलमानों में भी अभी यह है कि चूंकि कई लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो उसमें अहलुल हदीस जो बहुत पुराना लक़ब है इमाम अहमद बिन हम्बल से, बल्कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने भी वो जो मतलब ये मुत्तफ़क़ अलैह, हम उनके नक्शे कदम पे हैं। भले हम उनके साथ नहीं रहे, भले हमारी सांसें उनके साथ न रही, लेकिन हम उनके मनहज पर हैं, उनके नक्शे कदम पर हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हम भी अहलुल हदीस। अगर वो सियासत में आके इस्लामी सियासत कायम करें तो कैसा है? कायम करें, इस्लामी सियासत कायम करें तो सही, अच्छी बात है, करना चाहिए, करें तो सही, करने से ज़्यादा फितने पैदा हो जाए। उन्होंने कहा था कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ जनाज़ा अल्लाह ताला के आपके पास आया, वो उनको फिर बात आई, तारीफ जमीन था। ये जो मसल का वाक़या लेके जमात इस्लामी जो मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ अपने अपने मुल्क में एहतजाज करते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान शामिल होते हैं, उनके बारे में आप क्या करें? वो हमारे जो लोग इख्वानुल मुस्लिमीन या ये वही लोग शामिल होते हैं जो उनके तर्ज या उनके मनहज से नवाब लोग। ये कौन लोग? और वो लोग करते हैं जिनका अपना बुनियादी कोई ना कोई, या तो उसमें कई तरह के लोग हैं, तो बेचारे जाहिल, उनको पता नहीं है, इल्म नहीं है कि ये कौन लोग। बस एक जज्बा है इस्लाम का, और अल्लाह उस जज्बे को कबूल फरमाए। बहरहाल अच्छा जज्बा है कि हम इस्लामी क़यादत है, इस्लाम, लेकिन जो कायदीन हैं वो कौन लोग हैं और कहाँ उम्मत को ले जाएंगे, समझ रहे? एक तरफ हुआ, दूसरे अहलुल इल्म मशाइख, हमें चाहिए कि हमने अहले इल्म जो मशाइख हैं उनकी भी सुने, वो क्या कहते हैं उनके बारे में। जैसे शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद हुसैनी, दौरे हाजिर में सऊदी अरब में शेख सालेह अल फौज़ान हैं, और बड़े बड़े मशाइख हैं, शेख सालेह सुहैमी, और बहरहाल आलू शेख हैं, शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ जो मानी वज़ीर उसूल इस्लामिया। तो ये जो मशाइख और उलमा हैं, या पाकिस्तान में भी या हिंदुस्तान में भी जो अहलुल हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी टीम है। ऐसा नहीं कि कोई मामूली आप कह करके इसे ख़त्म कर, तो आप सुने ये क्या कह रहे हैं, दलाइल क्या है, बराहीन और जमात के साथ है। ये जमात है मुकम्मल, इनके साथ है। बकिया ये पार्टी कुछ कह रही है, वो उधर भागना है, वो उधर भागना है,
नौजवानों को चाहिए कि वो संजीदगी के साथ ये गौर करें कि हमें किन के साथ रहना चाहिए। ये जमातुल इख्वानी, इख्वानुल मुस्लिमीन हो या ये हो, नारे हैं इस ज़माने से मारूफ और मशहूर हैं, इनके कंटेंट, इनके राब्ते बड़े खतरनाक हैं रवाफिज और शीयों से, कि गोदों में हमने खुद अपनी आंखों से हिंदुस्तान में SIM हो या ये सब बाकायदे वो सब मतलब एक थैली के चट्टे बट्टे, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। और ये रवाफिज और शीयों की सबसे बड़ी ये कामयाबी रही है कि वो अहले सुन्नत वल जमाअत में से किसी शख्स को वो किसी तरह से फोड़ करके लेते हैं और लेने के बाद उसको हथियार बना करके अपना काम करते हैं। जैसे कि खुमैनी ने अपने ज़माने में कहा था मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि मुझे अहले सुन्नत वल जमाअत ही से हमारा एक वकील मिल गया है, तर्जमान मिल गया है हमारे धर्म का या हमारे मजहब शिया। क्यों कहा था उसने? दायरा खिलाफत व मुल्कियत जो उन्होंने छापी लिखी थी उसके अंदर सहाबे कराम के बारे में बहुत ज़्यादा तान थे, तशनीह थे, जिसको हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ पाकिस्तान के हफ़िज़ुल्लाह ने उनका जवाब भी लिखा है, वो किताब भी मौजूद पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल मनहज सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम है आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं यइश मिनकुम मिन बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, कि ऐ लोगों मेरे बाद जो तुम्हें कोई जिंदा रहा तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मेरी सुन्नत को और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और खबरदार दीन के अंदर नई बातों के ईजाद करने से बचना। तो इख्तिलाफ से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाज़िम करें। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, सुन्नत है, आप और उन लोगों को लाज़िम पकड़ें जो उस सुन्नत के ऊपर गामजन हैं, मजबूती के साथ अमल करते हैं, जिनका ईमान और अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जिनका ईमान और अकीदा भी नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं, मजहब भी अलग बना लिया, सब कुछ कर लिया, उनके पीछे जाएंगे क्या मिलेगा? ठीक है। तो ये जो फितना इस वक्त जो है मसला का या इसका, हमें तो चाहिए कि इन सब फितनों में पड़े ही नहीं। ये अपना सियासी मसले हैं, अपना चल रहे हैं, लेकिन जो मशाइख ने जो मतलब जैसे अभी सऊदी अरब में डिक्लेयर हुआ कि ये सब इरहाबी लोग, और यकीनन इनकी पूरी तारीफ पड़ी हुई है जिसमें इन्होंने हर जगह इन्होंने दहशतगर्दी का रोल अदा किया है। क्या करें? वो आपका जो बयान है सलमान नदवी का जो बयान हुआ था हैदराबाद, और उन्होंने जो है टाइम भी जो है बस वो एडवांटेज है, वो भी जैसा उन्होंने दिया तो उसको वैसे ही मैंने भी रोज प्ले कर दिया, बुराई गई बात खत्म, छोड़ो। हमने आपको, आपने हमको बुरा कहा, हमने आपको कह दिया, उस जज्बात में खुद कुछ बातें निकल गई। उसमें हुआ ये कि जो है सलमान नदवी साहब भी जो है ना बहुत ज़्यादा मुखालिफत करे और बहुत सारे झूठ बोले और किसी चीज़ की दलील पेश नहीं करे, तो उनका बैठ गए तो है। और अपने पास से भी जो है ना शेख, अपने पास से भी उसी अंदाज में जो है जवाब आया, और जो है ऐसा महसूस हुआ कि वक्त ज़ाया हुआ इधर, और दोनों तरफ से भी दलाइल जो है नहीं थे, और जो है इस बेदलील बातों की बेदलील जवाब सही रहते हैं। आप दलील देने जाएंगे तो कुछ समझने के मूड में नहीं, जैसा बोले उनको वैसा जवाब, वो गुस्सा लगा था मुझे भी, मैंने कह दिया, मैंने जाओ अल्लाह जैसा तुम्हारा सवाल वैसा जवाब। ये क्या कि आप वाले सऊद को कहें जनाबे अली ये यहूदियों की एजेंट हैं या ये इनका हसब नसब खराब, यानी आप किसी आप यानी ये तो ऐसे ही हुआ है कि पूरा कह देना हरामी है। आप उन्हीं हरामियों के बीच में पढ़े, आपने तालीम हासिल, आपके साहबजादे आ रहे उन्होंने भी पढ़ा, आप हर चीज वालिद मोहतरम नाना मोहतरम मौलाना अबू हसन नदवी था, है ना, वो जिंदगी भर राबता के मेंबर भी रहे, और यानी मलिक सऊद जिंदगी भर सऊदी अरब के साथ मोहब्बत और वला। तो क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब नाना मोहतरम जो थे वो यहूदियों का साथ दे, आप बड़े हैं या नाना बड़े? नाना बड़ा, तो नाना क्या मतलब नहीं जानते थे ये मलिक सऊद क्या है, मलिक फहद क्या है, मलिक अब्दुल्ला ये घराना क्या है, उनके घरानों में रहते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनके लिए नमाज जनाजा के लिए हरमैन शरीफैन में ऐलान हुआ, इतनी बड़ी इज्जत। आपको सिर्फ एक सीट नहीं मिली, आपने पूरा 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 नसबनामा ही पढ़ लिया। चलो आपको नहीं मिली, आपके भाई अरशद मदनी